Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. CAT 2024 registration process has started from today, that is 1st of August. In this video, we are going to tell you the detailed process on how to fill the form. The complete checklist of what all is needed before you start filling the form will be provided to you in this video. And separate inputs for category students will also be provided. ठीक है कि एससी कैटेगरी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एसटी कैटेगरी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऑल ऑफ दोज विल बी प्रोवाइडेड टू यू. Most important thing, many students who belong to professional degrees like CA, ICWA, CS, they have some issues in form filling process, so we will be giving separate inputs for that as well. Okay, so definitely watch this video till the end because it is going to be very pretty much important, because you need to fill the form correct and appropriately, because this is going to be taken into your final admission process. All the details here will be considered for your final admission process. So take time, make sure that you keep your checklist ready and then start with the process. Now, before we go ahead, I would like to tell you that we have started CAT workshops. CAT workshops are late night sessions, 9 to 10:30 p.m., wherein we solve previous year questions, difficult level questions, which will definitely prepare you for the exam. The registration fee for the CAT workshops is only 2,999 rupees. If you want to register for for CAT workshops, do connect with us on the numbers given in the description and we will share all the details with you. Moving forward. So the checklist, a valid phone number and email ID is needed, जो mostly सबके पास होगा ही. If you are a category student, then caste certificate, caste validity certificate will be needed for sure, and non-creamier certificate will be needed for OBC category candidates. And income certificate will be needed for EWS category certificate. Then, if it is applicable for you, you will need PWD certificate. 10, 12 graduation के mark sheets लगेंगे. If you have done completed your CA, ICWA, CS, FIAI, then those mark sheets will be needed. Even if it is in progress, you can write it there. Then you will mention about your work experience details. So all the work experience details means from the day of starting your job till the day of end of your job. So like that. And photo and signature. All of these things will be needed. Okay. Now let us start the process. You have to search CAT 2024 registration on Google. You will be directed to this page. Then the first thing that you have to do is go to this new candidate registration. New candidate registration, you have to go. This is not of your use. This is not of your use as of now. Okay, all the important dates and details are mentioned over here. The exam will be on 24th of November 2024, which will be a Sunday, and आपको 5th November से admit card मिलना start हो जाएगा. Moving forward, first thing when you go for registration, you will enter your name, your date of birth. Your name should be as per your 10th certificate. 10th के सर्टिफिकेट में जैसा नाम है एग्जैक्टली वैसा. तो आपका नाम, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा नाम कलोड़े अनिकेत विलास ऐसा लिखा है, तो मेरे को वैसा मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है. डेट ऑफ बर्थ, यू विल एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड देन यू विल ऑल्सो कंट्री डालोगे एंड एंटर योर मोबाइल नंबर. फिर ईमेल वेरिफिकेशन एंड मोबाइल वेरिफिकेशन होगा थ्रू ओटीपी. आई एग्री के ऊपर क्लिक करोगे, कैप्चा डालोगे, कंफर्म करोगे, आगे जाओगे. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, इसके आगे योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड. योर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू यू ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. वहां पे आपको आईडी एंड पासवर्ड दे दिया है. काइंडली क्लिक ऑन लॉग आउट एंड देन लॉग इन अगेन.
ठीक है, आप लॉग आउट का बटन रहेगा, यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन रहेगा, वो लॉग आउट के बटन पे क्लिक करके आप फिर से बेसिक लॉगिन करोगे। वंस यू क्लिक ऑन लॉगिन, देन आपको अपने पर्सनल डिटेल्स से स्टार्ट करना है। सो योर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इफ यू हैव अ स्पाउस तो उनका नेम, अदर डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का जेंडर, नेशनैलिटी, फिर आता है कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी के। अभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले, अगर इफ यू सिलेक्ट जनरल कैटेगरी, इफ यू सिलेक्ट जनरल कैटेगरी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इफ यू सिलेक्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इफ यू सिलेक्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, देन सर्टिफिकेट इशू डेट, आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिला होगा उसका इशू डेट क्या है, देन किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने दिया है उस पे आपका नंबर एक रहेगा, वो प्रोवाइड करना होगा, एंड आपके कास्ट एंड ट्राइब का नेम विच इज जनरल ओनली। फॉर एनसीओबीसी आपका फिर से वही सर्टिफिकेट इशू डेट, या आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट का करना है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट का करना है। सेम फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स, है ना, आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करना है। यू डोंट हैव टू अपलोड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट नाउ, मतलब कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, बट इट शुड बी अवेलेबल विथ यू, क्योंकि उसमें से डिटेल्स आपको डालने हैं। Moving forward, if you belong to a person with disability, you will select yes and then disability measurable, your UDID number, PWD category. Then there are two questions: if you need a wheelchair or not, and do you need a scribe or not. Scribe is someone जो आपको एग्जाम के डे पे हेल्प करेगा, ठीक है। Then your communication address, put all your communication details. If your communication address is same as your permanent address, put those details here as well, ठीक है। If it is same तो वो वैसे का वैसा आ जाएगा, if it is not तो वो फिर आपको अलग से भेजना होगा। Moving forward, then you upload your documents. You need to upload your passport size photograph and your signature, ठीक है। All the details of the photograph are mentioned over here. File size should be maximum 1 MB and it should be a JPEG or JPG product, JPG file only, ठीक है। देन आपको एडमिट कार्ड के वक्त भी सेम फोटोग्राफ आपके पास हार्ड कॉपी में रहना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड के ऊपर भी आपको फोटोग्राफ लगाना है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये फोटोग्राफ इज अ वेरी इजी प्रोसेस, वो आप कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स योर एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में अभी पहले तो आपका 10th का स्कोर आएगा। 10th के स्कोर में आप अपने डिटेल्स लिखोगे कि कौन से बोर्ड से किया, सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, यूपी स्टेट बोर्ड, जो कोई भी बोर्ड से आपने किया होगा वो स्टेट बोर्ड लिखोगे। ईयर ऑफ कंप्लीशन, मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, एंड टोटल मार्क्स ऑप्टेड, मतलब अगर 600 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे एंड टोटल मार्क्स आपको मिले हैं 500, तो वैसा यहाँ पे 600 आएगा एंड यहाँ पे 500 आएगा, एंड एग्रीगेट परसेंटेज। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि ये सभी जगह एप्लीकेबल होगा, 12th एंड ग्रेजुएशन के वक्त भी। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको बेस्ट ऑफ 5 वगैरह नहीं करना है कि 6 पेपर हुए थे बट बेस्ट ऑफ 5 का रिजल्ट नहीं। यू हैव टू मेंशन द ओवरऑल टोटल एंड ओवरऑल टोटल ऑप्टेंड, ओवरऑल मार्क्स ऑप्टेंड, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ 5 नहीं करना है। अगर आपके 6 पेपर हुए थे तो 6 पेपर का आपको पूरा डेटा लेना है। सेकेंड, आपका अगर सीजीपीए में अगर आपका परसेंटेज है, अगर आपका सीजीपीए में परसेंटेज है, then in that case the board should have provided, है ना, based on the procedure certified by the respective board, university or institution, है ना। तो अगर आपका आपके बोर्ड ने दे के रखा है कि दिस इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर टू गेट द परसेंटेज फ्रॉम सीजीपीए, तो आप वो लगाओगे। नहीं तो आप अपना सीजीपीए डायरेक्टली मैक्सिमम पॉसिबल सीजीपीए से डिवाइड करके इनटू 100 करोगे। फॉर एग्जाम्पल,
टोटल आपका सीजीपीए है 10, आपको मिला है 8 सीजीपीए, तो आप इंटू 100% करोगे, इंटू 100% करोगे। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द सीजीपीए। ठीक है, वंस यू मेंशन ऑल ऑफ दिस, फिर आपका आएगा 10th एंड 12th इक्विवेलेंट। तो एक तो आपने 12th किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, सेम 12th का बोर्ड, ईयर ऑफ कंप्लीशन, डिसिप्लिन क्या था आपका, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो कोई भी डिसिप्लिन था, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, एंड एग्रीगेट परसेंटेज। यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स लिखा है, तो ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूड करना है, बेस्ट ऑफ 5 वगैरह नहीं करना है। अगेन सीजीपीए है तो सीजीपीए कन्वर्जन आपका रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने 12th ना करके डिप्लोमा किया है तो उसके डिटेल्स है ना, कि कौन सा बोर्ड था, क्या ड्यूरेशन था, ईयर ऑफ कमेंसमेंट, ईयर ऑफ कंप्लीशन, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन एंड एग्रीगेट परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इट इज अ सिंपल प्रोसेस। ठीक है, देन कम्स योर बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री में इफ यू आर नॉट इन योर फाइनल ईयर एंड यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर बैचलर्स डिग्री, तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर इन सेकेंड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन तो आप कैट एग्जाम दे ही नहीं सकते। ठीक है, सो डोंट गेट इनटू दैट प्रैक्टिस कि भाई चलो मैं अभी फाइनल ईयर में लिख के एग्जाम दे देता हूँ। इफ यू आर नॉट एलिजिबल डोंट राइट इट, बिकॉज इफ दे कैच यू नेक्स्ट ईयर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बट इफ यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, then you will mention your total degree, duration, degree, current semester, university, college name, university name, state in which your degree university is there, and your degree name, whether it is a BBA, BCom, engineering, all those will be mentioned here. Moving forward, bachelor's degrees details. Are you in final year of bachelor's degree details? So you will mention, let us say, no, and you have completed your bachelor's degree. Then they will ask for all the details जो हमको पहले पूछे थे, but here they will also ask you कि आपका परसेंटेज कितना है। अभी यहाँ पे एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे जिनका इंजीनियरिंग के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, या बीबीए के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, या फिर एनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम के एग्जाम्स आपके खत्म हो गए हैं, बट यू हैव नॉट गॉट योर रिजल्ट। हो सकता है ना ऐसा। सो इन दैट केस यू विल स्टिल राइट यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर बैचलर्स डिग्री। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर if you have not got your result, then you will not have the percentage marks with you. Then in that case you will still write appearing over there. ठीक है, moving forward, if you have a dual degree you can click yes, and you can mention about your second bachelor degree details as well. And if you have a master's degree, you can select yes and mention about all your master degree details here. Okay. Then if you have FIAI, then you will click on yes, put your scores here. If do you want to enter any professional degree details, so you can put those as well. CA, CS, ICWA. They can either be completed or in progress. If it is completed, if you select that, then you will have to mention your final CA के exam का score. Okay, simple process. Then you mention about your work experience details as on 31st July 2024. 31st July 2024 तक का आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा। You will select the industry in which you have worked. If your industry is not mentioned here, you can select the others वाला part. Specify your industry. Let us say यहाँ पे आपको एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में लिखना है, तो you will mention here. You will mention your start date, end date, and if there is any gap, let us say आपने दो जॉब्स के बीच में 15 दिन का गैप लिया है, तो वो 15 दिन का गैप आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, दैट इज व्हाई यू नीड ऑल योर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। आपका स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट आपको पता रहना चाहिए।
Moving forward, moving forward about the programs. अभी you can select all the programs, है ना? Don't worry a lot. देखो, this is a common form for all MBA, for all IIMs and CAT together, है ना? मतलब एक इसी फॉर्म से आपका कैट का एप्लीकेशन भी होता है एंड उसी फॉर्म से आपका एमबीए का एप्लीकेशन भी होता है। ठीक है, एमबीए मतलब जितने भी आईएम के कॉलेजेस हैं, जिनके जितने भी प्रोग्राम्स है, उसका भी एप्लीकेशन आपका इसी फॉर्म से होता है। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस इन सिलेक्टिंग ऑल द प्रोग्राम्स एंड ऑल द इंटरव्यू सिटीज एज वेल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सिलेक्ट ऑल द प्रोग्राम्स, है ना? कोई भी प्रोग्राम छोड़ो ही मत। एंड देन सिलेक्ट द इंटरव्यू प्रेफरेंस सिटीज, है ना? अभी इंटरव्यू प्रेफरेंस सिटीज ये आपके घर के नजदीक जो कोई भी है, मुंबई, Bangalore, Delhi, Kolkata, all such options are there generally. So you will have to select there and be ready to travel to those cities when the interview calls are there. ठीक है, तो एकदम अच्छे से शांति से देख के ये इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंसेस डालना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव योर टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस कि किस सिटी में आपको टेस्ट देना है। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस यू कैन सिलेक्ट। यू हैव टू सिलेक्ट 5 ऑप्शंस डेफिनेटली। तो वो 5 ऑप्शंस आपके नजदीकी सिटीज हो सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम मुंबई, यू कैन सिलेक्ट मुंबई, नवी मुंबई, थाने, वसई एंड मे बी पुणे, है ना? ऐसे आप 5 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके नजदीक जो कोई भी ऑप्शंस होंगे सिटीज के, वो आपको फिल करने होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, देन यू हैव टू फिल योर डिक्लेरेशन। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हो, योर एप्लीकेशन फी विल बी 2500 रुपीज। बट इफ यू फिल थ्रू एनी other category like SC, ST, PWD, then your fees will be 2500 rupees. Okay, then you select this, your payment mode, you click on the declaration, you put your CAPTCHA over here and you submit, and then you are directed to the payment gateway. Okay, so it is an easy form filling process. I hope I have answered each and every doubt that you have. But still, if you feel that there are some steps that we have missed, or there are few, what do you say, few extra doubts that you have, please put it in the comment section. And don't forget about CAT workshops, late night 9 to 10:30 p.m. There we solve previous year questions and difficult level questions which prepare you for the actual exam. So fees for CAT workshops is just 3,000 rupees. So if you want to get enrolled for that, please come connect with us on the numbers given in the description. Thank you so much. Jai Hind.